जो 98 में किया, कभी-कभी आपको दिखाना भी ज़रूरी होता है कि हमारे पास भी है। Where do you think we currently are in that implementation of the program? बट न्यूक्लियर में और स्पेशली इंडिया में हम वो टूथपेस्ट वाली जनरेशन है, तो एकदम निचोड़ के जितना निकल सकता है वी वांट टू यूज इट। वो एक्सप्लोजन और हिरोशिमा नागासाकी एक्सप्लोजन है, सेम नहीं है। पिछले 10 या 12 साल ग्लोबल न्यूक्लियर कैपेसिटी इज फ्लैट लाइन। हमारे पास थोरियम रिसोर्सेज बहुत हैं, बट हम उसको ऐसे डायरेक्ट रिएक्टर में नहीं डाल सकते। COP 28 में दुबई में न्यूक्लियर वाज इंक्लूडेड इन द क्लाइमेट एग्रीमेंट। SMR as a technology mature हो गया। Was that the main reason कि Was able to establish Apsara, India's first nuclear reactor. Before the war scenario, this Chernobyl site was one of the leading tourist sites. The world is shifting from a unipolar to a multipolar global order. Trump is back and power is realigning. AI is rising, reshaping jobs and rewriting futures. The planet is warming up while the birth rates fall. To see these in isolation is to miss the bigger picture. A world which is unsteady, unpredictable, and transforming before our eyes. Let's make sense of the happening from India's lens, one conversation at a time. Welcome to the Nagrik Podcast with Hari. Welcome to the Nagrik Podcast. It's great to have you on the show. Same here, thanks. So I think for our viewers, it'll be good to know your background, what you've done, where you've studied, and where you're working right now. Okay, I'm basically a nuclear safety and design engineer. I did my double masters, one from Delhi University in nuclear science and technology, and masters in nuclear energy from University of Paris. Then I did my PhD, doctorate from Bhabha Atomic Research Center in nuclear safety, and my expertise was severe accidents. The severe accident like Fukushima kind of experiments, how to make them safer. So this was my PhD. Then I also did 2 management diplomas in nuclear energy management and nuclear knowledge management. One from ICTP in Italy with IAEA, and one from MEPhi University, Russia. So this was like briefly I did. Currently, I'm working at ITER, the fusion reactor, where we are doing world's largest fusion experiment, which is one of the collaborative projects. We can discuss about it in detail. And in along with that, I'm also the founder president of Indian Youth Nuclear Society, which is one of the organization, non-profit organization working in the country for awareness, safety, discussions, the education part and policy discussion and things like that. Addition to that, I am also the co-founder of Women in Fusion Initiative, which is the leading organization for encouraging global women to be part of fusion industry, and also the part of International Youth Nuclear Congress right now. So I'm wearing many hats, but let's say I will wear today my own hat today to this for this discussion. So good to hear so many things that you're doing outside of your core profession. From a common man's perspective, जब भी वो न्यूक्लियर के बारे में सुनते हैं तो सब लोगों के दिमाग में 2 या 3 इवेंट्स ही आते हैं। या तो आपका 45 का हिरोशिमा, या फिर यूक्रेन में जो चेर्नोबिल हुआ, या फिर रिसेंटली जापान में फुकुशिमा, राइट? एंड इन दोनों तीनों इवेंट्स को जब आप कुछ ग्राफ्स के थ्रू स्टडी करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव निकल के आता है. सो इन वन ऑफ द ग्राफ्स दैट वी आर सीइंग एट द मोमेंट, वी सी दैट 1986-87 में, राइट, जब चेर्नोबिल होता है तो दैट वाज एसेंशली द पीक ऑफ द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वर्ल्ड वाइड. और वो नंबर्स अभी हम उसके, मैं जितना ग्राफ में देख पा रहा हूँ, अभी 1/4 1/5 कैपेसिटी ही हम डाल रहे हैं. सो दैट्स अ वेरी स्कैरी फिगर इन ऑफ इट सेल्फ कि जब आप वो देखते हैं कि इवेंट होता है एंड बिल्कुल इंस्टॉलेशंस रुक जाते हैं. दैट्स नंबर 1. एंड अनदर प्रॉब्लम, अगेन इट्स ऑल डाउनहिल फ्रॉम देयर. एंड द सेकेंड इवेंट जो फुकुशिमा में होता है, उसके अराउंड आप नोटिस करते हैं कि इवन द इंस्टॉलेशन जो 60s 70s 80s में हुए वो शट डाउन होने स्टार्ट होते हैं. एंड पिछले 10 या 12 सालों, पिछले इनफैक्ट 20 सालों में जो ओवरऑल ग्लोबल न्यूक्लियर कैपेसिटी है, इट्स फ्लैट लाइंड. डिप होता है एंड देन अब आई थिंक थोड़ा सा इंक्रीज होके वी हैव जस्ट रीच द लेवल जो 2000-2002 में थे, राइट. एंड जो भी, जैसे आई थिंक मोस्टली सबको पता ही है कि जर्मनी ने अपना ऑलमोस्ट सिवियर न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ही वाइंड डाउन कर दिया है, राइट. सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, what is happening with nuclear fission globally at this moment, right? जहाँ पे 2 या 3 आपके 2 इवेंट्स कैटास्ट्रॉफिक होते हैं, कैपेसिटी फ्रेश नहीं डल पा रहा है, जो कैपेसिटी है वो भी शट डाउन हो रहा है एंड उसका रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा है. वेयर इज न्यूक्लियर फिजन हेडिंग ग्लोबली एट दिस मोमेंट?
let's take it from there itself. April 1986. That's when the Chernobyl happened. Actually, literally sense में देखो तो कहानी थोड़ी उससे पहले है. In I think 74 there was a report, we call it WASH 1400 or Rasmussen report came. He was a person who headed one safety committee and he was reviewing the safety parameters of reactors and all. And he studied many scenarios which may be possible in reactors, which will lead to catastrophic scenario, as we say, and in technical terms we say severe accidents. Okay, let's say Chernobyl, but Chernobyl was a different kind. Don't want to put it into Chernobyl, but let's say Fukushima. Even in 1979, the 3 Mile Island came, which was so in severe accident term we categorize these three. 1979, 3 Mile Island, 1986, Chernobyl, 2011, Fukushima. Okay, so this I think the report came in 1974 or something like this. So this report actually estimated that these sort of things may happen. Core melting is a possibility. There is a possibility of, let's say, hydrogen explosion. There is a possibility of steam explosion. There is a possibility, if you combine all of them, then there is a possibility of severe core meltdown and things like that. All of this was done. As I said, न्यूक्लियर में हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, तो पहले से सोच लेते हैं क्या क्या खराब हो सकता है, इसीलिए उसके लिए पहले से ही ये चीज़ ना हो तो आप पहले से ये लगाओ, वी टेक ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि अगर वो चीज़ हो भी तो भी उसका इम्पैक्ट ना हो, वी आर प्रिपेयर्ड. तो डिज़ाइन में ही फ्यूचर में जो इन अ वे मिसहैप हो सकते हैं वो ऑलरेडी डिज़ाइन में ही इंक्लूडेड हैं. डिज़ाइन में, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में यू इनकैप्सुलेट ऑल द सिनेरियोज, ताकि हो ही ना, और अगर हो तो उसका इम्पैक्ट ना हो, अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो मिनिमाइज हो. सो वी पुट ऑल ऑफ दिस, जितना भी पॉसिबल है, वी कॉल इट एज रीजनेबली एज पॉसिबल, क्योंकि आप ये भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही ना हो, फिर आपकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी, फिर आप कहोगे इतना महंगा हम क्यों ही लें. तो लाइक यू ऑप्टिमाइज इट कि एज मच एज वी कैन, कंसिडरिंग ये सब कहानी. सो दिस वॉज द टाइम ये हो रहा था. उस टाइम पे जब रिपोर्ट आई तो पीपल थे अरे ऐसे थोड़ी होता है, नो नो इट्स नॉट पॉसिबल. सो देन दे वर स्मार्ट साइंटिस्ट, दे सेड कि होता तो नहीं है लेकिन अगर हो गया तो, सो लेट्स फिगर इट आउट. एंड दैट वाज द टाइम पीपल स्टार्टेड वर्किंग आउट कि अगर ऐसा कुछ हो तो हम सेफ्टी सिस्टम से ये वो सब करें. जब 79 में TMI हुआ तो इट वाज प्रूवन कि वॉश 1400 रिपोर्ट सही कह रही थी, गवर्नमेंट हो रहा है, वो तो अच्छा है कि कुछ लीकेज नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज कंटेन्ड विद इन द प्रेशर वेसल एंड ऑल, सो इट वाज ओके, कंटेन्ड. चर्नोबिल जब हुआ इट वाज आई ओपनिंग, ऑल्दो द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कि चर्नोबिल वाज नॉट कि जस्ट लाइक दैट हो गया. वो उसके होने का रीजन ये था कि they stopped the safety system to perform the experiment. So they actually override it, which was wrong. But it was, क्योंकि उस टाइम का जो सिनेरियो था it was different. It was not just a power reactor which is governed by the normal regulatory of this kind कि आप टेस्ट नहीं कर सकते या थिंग्स लाइक दैट. तो इट वाज अ डिफरेंट अप्रोच. तो वो हुआ बेसिकली इट वाज नॉट कि उस टाइम तक ऐसा नहीं था कि आपको न्यूक्लियर सब समझ में आ गया है, यू स्टिल वांटेड टू एक्सप्लोर मोर, एंड दीज वर डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्टर्स उस टाइम पे. लाइक वो शुरू के टाइप के रिएक्टर्स है, दे वांटेड टू पुश द कैपेसिटी. जैसे आपने कार ली है, यू वांट टू टेस्ट इट कि कहाँ तक जा सकती है, यू डोंट नो कि क्या होगा. 120 120 पे गई, उसने वार्निंग दी, उसने कहा कि वार्निंग दे रहा है, तो अगर वार्निंग बंद करके 50 पे ले जाके देखिए तो क्या हो रहा है. लेट पुट इट दिस वे. सो दे वांटेड टू एक्सप्लोर, दे वर डूइंग सम टेस्ट व्हिच वेंट रॉन्ग, देन दे वर नॉट एबल टू डू दैट. ओके, अब यहाँ पे दो चीज समझने की है कि उससे हुआ क्या. टेस्ट हुआ, उससे सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजन हुआ. पहली बात अगेन, वो एक्सप्लोजन और 1945 का जो हिरोशिमा नागासाकी एक्सप्लोजन है सेम नहीं है, पहला पॉइंट. और वो
जो रिएक्टर का डिज़ाइन है वो और आज के कन्वेंशनल जो रिएक्टर चल रहे हैं या ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टर जो एक डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए ही डिज़ाइन किया गया था. तो लेकिन जो कॉमन चीज़ हुई दोनों इवेंट में वो ये कि वहाँ पे तो लोग ऑब्वियसली मरे क्योंकि वो मारने के लिए डिज़ाइन था 45 में. लेकिन जो चर्नोबिल में हुआ उसमें क्या हुआ कि देयर वाज अ ह्यूज लीकेज. तो लीकेज लोगों को इफेक्ट ना करे उससे पहले ही इवैक्यूएशन कराया गया, मैसिव इवैक्यूएशन, जिसकी वजह से लोगों को सेम डर आया जो उन्होंने स्टोरी सुनी थी फुकुशिमा हिरोशिमा की. एंड दैट लेट स्टेट इन द पीपल एंड वो लोग वहाँ पे वापस नहीं जा पाए एंड ऑल, विच इज़ अ फैक्ट, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव हो गई थी चीज़ें, वहाँ पे कोई नहीं गया. और तो वो इन अ वे जस्ट टू पुट इन कॉन्टेक्स्ट, क्या वो अगले 500 600 हज़ार सालों के लिए अफेक्टेड रहेगा? सी इफेक्टेड रहेगा इतना साल बट हाफ लाइफ के हिसाब से, बट द पॉइंट इज वो अभी एक बहुत बड़ा टेस्ट बेंच है. उसमें अगर आप जाके देखेंगे ना तो जो फ्लोरा एंड फौना है वो इट्स थ्राइविंग कंपेयर टू एनी अदर प्लेसेस. क्योंकि एक्चुअली हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि हमने ह्यूमंस ने कोई नई रेडिएशंस पैदा नहीं किए हैं. रेडिएशंस आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नेचर. वी ग्रू और वी डेवलप्ड अमंग द पूल ऑफ रेडिएशंस. तो बॉडी में वो मैकेनिज्म है, हर स्पीशीज में रेडिएशन से टैकल करने के लिए मैकेनिज्म है, डिफरेंट स्ट्रेंथ का, डिफरेंट इंटेंसिटी का, अकॉर्डिंगली डिजाइंड है. जहाँ पे नेचर को पता है ज़्यादा होगी उन्होंने उसके हिसाब से बनाया है, जहाँ पे उन्हें लगता है कम होगी उसके हिसाब से नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर मशरूम्स जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन डिटेरेंस है. वो लोग बहुत ज़्यादा रेडिएशन एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं. तो मतलब कह रहे हैं फूड की कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब रेडिएशन प्रोन हैं, बहुत सारे हैं. तो लाइक वहाँ पे अभी आप देखोगे तो वहाँ पे जो जंगल और वेजिटेशन है इट्स थ्राइविंग. सो लाइक अब ये सबके लिए नया भी है क्योंकि अगेन वैसे देखो तो कुछ 70 साल ही हुए ना टोटल न्यूक्लियर को जाने हुए, समझे हुए हमें. तो लाइक देयर आर स्टडीज विच आर गोइंग इन अदर डायरेक्शन. तो ऑफ कोर्स क्योंकि हमें अभी पूरा डिटेल नहीं पता है तो नोबडी विल आस्क देम टू गो बैक. दिस इज द थिंग. ऑल्दो before the war scenario, this Chernobyl site was one of the leading tourist site. Even I was planning to go there in the same year of April. April 2022, 2021. 21. Yeah, 21. It's amazing to be there. एंड इट्स सेफ टू गो. It's safe, yes. There are many tourists who were going and they have established proper tourism system कि आपको वहाँ जाना है, रेडिएशन डोजीमीटर मिलेगा, आप जाओ देखो आपको कितनी डोज मिले, and all everything. It was well structured. So it's not like कि सब डर रहे हैं या क्या. तो this was one of the case. Okay. So scenario ये था कि ये चर्नोबिल हुआ. Then obviously people were afraid. And अब लोगों के पास दो चीज़ें थी. एक रिपोर्ट जो इस टाइप की चीज़ें आपको प्रेडिक्ट कर रही है, जिसमें से कुछ चीज़ें सच हो रही हैं. दूसरे एक्सीडेंट जो उसको प्रॉपर प्रूव कर रहे हैं. सो देयर वाज अ थिंग कि ओके लेट्स टेक अ ब्रेक. इस रिपोर्ट में जो चीज़ें कही हैं वो डेवलप करो एंड देन गो अहेड. सो दिस वाज द टाइम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन सेफ्टी वाज एट पीक. इंटरेस्टिंग. कैपेसिटी ड्रॉप हो गया बट जो डेवलपमेंट और डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स हैं बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट, बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट हैपेंड, वो अब थ्रू द रूफ जाने लगे. Exactly. So we call them lessons learned. So nuclear industry learn from its mistakes, accidents, scenarios, deviations. तो वो सब उन्होंने improve किया. उस टाइम पे the R&D of severe accident safety was peaking. And this led to the designs of EPR, European Pressurized Reactor, AP1000 जो Westinghouse का one of the advanced reactors है. We call them generation 3+ reactors. Which are being आज की डेट में, क्योंकि वो डिले will come after Fukushima as well. तो वो उस टाइम पे उन्होंने वो उसमें इनकॉर्पोरेट किए कि भाई जब हमने सीख लिया तो then they were like कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता. We made the safest reactor. और वो तब तक अभी लगे नहीं हैं. डिजाइन एंड एवरीथिंग इज रेडी. ये अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरा 2011-10, जस्ट प्री फुकुशिमा.
everyone was trying to, and तब तक सब लोग कंफर्टेबल है कि हाँ अभी न्यूक्लियर ठीक है, अभी सब सही चल रहा है. तो इट वाज दिस टाइम सबको लग रहा था कि हाँ अब हम वापस से सेफ रिएक्टर्स को लेके मार्केट में जाएंगे. एंड देन बूम, फुकुशिमा हैपेंड. एंड उसको वो भी नहीं कह सकते, इट्स सुनामी ड्रिवन था वो. ऑफ कोर्स दैट्स वेयर आई एम कमिंग नाउ. तो फुकुशिमा वाज, आई वुड से, लिटरली एन एक्सीडेंट. हाँ, कि वो एक्सीडेंट है, वो खुद से हुआ है, उसमें किसी ने कुछ किया नहीं है. कोई प्रोटोकॉल्स नहीं ब्रीच, कुछ भी नहीं हुआ. नहीं, उसमें उसमें जो था वो था. ठीक है, तो सुनामी आई. पहली बात तो अगेन एज आई सेड, रिएक्टर्स प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ बनाए जाते हैं. उन्हें पता था उस रीजन में सुनामी आती है, उन्हें पता था उस रीजन में अर्थक्वेक आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बनाया. अर्थक्वेक आया, रिएक्टर शट डाउन हो गया बिकॉज इट वाज डिजाइन फॉर इट. सुनामी आई, उसके लिए ऑलरेडी हाइट पे बनाया था, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि कोई बात नहीं, पानी आएगा चला जाएगा. बट दिस सुनामी वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हुई जो बाद में बहुत बड़ी हो गई. तो जो सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, जब रिएक्टर बंद हो गया तो फिर वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई पे चलते हैं, बैटरी, डीजल, जनरेटर, व्हाटएवर. तो हुआ क्या कि वो जो सुनामी वेव आई वो इतनी ऊंची आई कि वो डीजल जनरेटर पे, तो आपका बैकअप इलेक्ट्रिसिटी सोर्स भी डिस्ट्रॉय हो गया उस टाइम. दिस वाज नॉट थॉट ऑफ. बैकअप का भी बैकअप. हाँ, दूसरी चीज कि उसने जो पूरी आपकी एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ ग्रिड कर दिया. पूरे स्टेशन पे कहीं पावर नहीं है कि आप कहीं से कनेक्ट भी कर पाओ. कट ऑफ ही कर दिया. वी कॉल इट स्टेशन ब्लैकआउट. अब ये पहले किसी ने नहीं सोचा था, तो लाइक कि ये भी हो सकता है. तो उसके बाद कोशिश की गई, तो वहां पे आप अप्रोच नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इट वाज सो मच ऑफ वाटर, तो वो हो नहीं पाया. दिस लेड टू, जो कोर है ड्राई आउट हो गई, उसमें से इंटरेक्शन से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ. एंड दिस वाज हाइड्रोजन एक्सप्लोजन विच टुक प्लेस. वो जो ऊपर हुआ, इट वाज नॉट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट ऑल, इट वाज ओनली इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन एक्सप्लोजन, जिससे वो रूफ उड़ गई एंड थिंग्स लाइक दैट. सो अगेन ये चीज़ हुई, अगेन फ्राइटनिंग. जो लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया, इट वाज बिकॉज ऑफ सुनामी, not because of any nuclear accident or something. So this was all happened. तो अब ये हो गया कि जो एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट का पिरामिड होता है, उसमें वो लेवल 7, 6, 5, 4 ऐसे होते हैं. तो भाई फुकुशिमा भी लेवल 6 एक्सपेरिमेंट है, चेर्नोबिल भी लेवल 6 एक्सपेरिमेंट है, तो लाइक इट्स सेम हो गया. अदरवाइज स्केल के हिसाब से देखो, रेडियो एक्टिविटी रिलीज के हिसाब से देखो, तो चेर्नोबिल वाज मच बिगर कंपेयर टू फुकुशिमा, क्योंकि उसमें इतना रेडियो एक्टिविटी लीकेज नहीं था जितना चेर्नोबिल में था, क्योंकि वहाँ पे कोर एक्सपोजर है, यहाँ पे नहीं है. लेकिन जो फियर है, इट वाज इवन मोर. क्योंकि अब लोगों के पास 2 इवेंट थे टू रेफर. पहले तो आप कहते कि चलो तो मिलिट्री का है, हाँ मिलिट्री है, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, ब्रीथ. अभी उनके पास 2 ऑप्शन थे कि वहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ. राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है बहुत स्पेशल सर्कमस्टेंस है, सुनामी ड्रिवन है, बट फिर भी एक इवेंट तो बन ही गया. ठीक है, वो बन गया, तो द फियर वाज सुपर हाई. एंड तीसरी चीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, दिस वाज द टाइम जो हम सो कॉल्ड 21st सेंचुरी का गा रहे थे गान कि लाइक वी आर सुपर एडवांस नाउ, 21st सेंचुरी, यू नो, रोबो, ये वो, हाईटेक. एंड बूम, तो लाइक कि whatever technological advancement you are talking about, ये तो फिर भी हो रहा है. And it was again difficult to convince कि यार ये टेक्नोलॉजी अभी भी 60s का डिजाइन रिएक्टर है. वो फिर फुकुशिमा भी वही 60-70s का ही था. डिजाइन तो तभी के हैं, नया रिएक्टर तो अभी बना ही नहीं है ना. जो EPR, AP1000 वो सब थे, वो तो सिर्फ डिजाइन में थे, वो भी ऑपरेशन में ही नहीं है. तो आप, बट nobody was ready to take this point. मेक सेंस. उसके बाद भी वो रिएक्टर सेफली काम किए, विच इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि 60 साल पुराने रिएक्टर भी अर्थक्वेक आया, दे वर स्टॉप्ड फंक्शनिंग प्रीटी वेल. सो नाउ अगेन ये सारे फैक्टर्स भी अब रिएक्टर्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए हैं. बैकअप का भी बैकअप नहीं,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा कर दिया है कि चाहे ब्लैकआउट हो चाहे कुछ भी हो जाओ, वी डिजाइन द सिस्टम के रिएक्टर में ऑटोमेटिकली सेल्फ पैसिव सिस्टम्स हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पैसिवली नेचुरल फिनोमिना से ही वो कूल डाउन हो जाएगा। वी कॉल इट नेचुरल फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में क्या होता है, अगर आप पानी गर्म करते हो तो उसकी डेंसिटी चेंज होती है हीट की वजह से, तो गर्म पानी ऊपर आता है, ठंडा पानी हो जाता है तो उसकी डेंसिटी फिर बढ़ती है तो वो नीचे आता है। ठीक है, तो ये अगर आप हीट कर रहे हो किसी चीज़ को तो होगा, लेकिन अगर आप हीट सोर्स की जगह इसको आप कोर में डाल दो और वहाँ पे कोई चीज़ ठंडा करने के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो जो हीट है वो इस पानी को अपने आप गर्म करेगी, ये पानी फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर अपने आप ठंडा हो जाएगा। सो वी डिजाइन दिस सिस्टम के ऊपर ठंडा हो जाए, लेट्स से हवा से या कैसे भी जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी को कुछ नहीं करना, वो वहाँ ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर आ जाएगा, तो एक नेचुरल साइफन बन जाएगा। यू नो, वी कॉल इट नेचुरल सर्कुलेशन साइफन। सो इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी वी डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द रिएक्टर्स, ताकि अगर स्टेशन ब्लैकआउट हो, कोई ऑपरेटर हो ही ना, कोई आप एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कोई बंदा जा नहीं सकता, कुछ नहीं हो रहा, वो आइसोलेट हो गया, तो भी दिस सिस्टम कैन कीप द कोर डाउन। उससे क्या है कि कोर मेल्ट नहीं होगा, कोर मेल्ट नहीं होगा तो कोई कोर मेल्ट इंटरेक्शन नहीं होगा, वो नहीं होगा तो हाइड्रोजन एक्सप्लोजन, स्टीम एक्सप्लोजन, ये सब कुछ नहीं होगा। चाहे भले वो रिएक्टर एक वो डब्बा बन के वहाँ पे रखा रहेगा, बट एटलीस्ट बाहर कुछ नहीं आएगा। सो दैट वी कॉल इट सीवियर एक्सीडेंट मैनेजमेंट। उसके बहुत सारे अलग अलग डोमेन में सेफ्टी सिस्टम्स डेवलप किए गए और इंस्टॉल किए गए। सो दिस इज ऑल हैपन। ठीक है, नाउ डिप तो आ गया, ठीक है, अब डिप आ गया क्योंकि सब डर गए। नाउ इमेजिन इस सिचुएशन पे आपके पास दो बड़े सुपर सेफ रिएक्टर उस टाइम में चर्चा में है। यूरोप में है EPR विच इज़ 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिक, मैसिव। इधर वेस्ट में US में है AP1000 विच इज़ लाइक 1100 मेगावाट इलेक्ट्रिक, मैसिव रिएक्टर्स। और दूसरी तरफ है पब्लिक परसेप्शन जो न्यूक्लियर के बारे में सुनना तक नहीं चाहती, बोलो भी मत भाई, बात भी मत, सुनना ही नहीं है कुछ। कोई 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 आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, वो सही है गलत है, वी डोंट केयर, वी डोंट नीड इट, सिंपल। तो सब लोगों ने, भाई पब्लिक है, सब बंद बंद हो रहे हैं, सब जगह सब चल रहा है, दिस वाज सिनेरियो। एंड अब कोई आपको कहे कि एक तो हम बात नहीं कर रहे और ऊपर से हम इतना बड़ा इतना एक्सपेंसिव रिएक्टर ऑफर करेंगे, तो हु विल बी इंटरेस्टेड? है बिल्कुल सेफ बट इतना कॉस्टली है। इतना कॉस्टली है क्योंकि आप सेफ्टी दे रहे हो और क्योंकि लोगों में ऑलरेडी गुस्सा है, आक्रोश है कि दे डोंट वांट इट, सो दे डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट। सो देन देयर वाज दिस डिक्लाइन इन द ग्राफ के भाई, और दिस इज आल्सो द टाइम जो ऑलरेडी 60s में 70s में 80s में रिएक्टर बने हैं, वो 30-40 साल 50 साल ऑपरेशन में आ चुके हैं। और रिएक्टर की उस टाइम पे डिज़ाइन लाइफ होती थी 40, जो आप उसको 50-60 साल तक चला सकते हो। जैसे अभी जो हम रिएक्टर बना रहे हैं वो 60 ईयर्स की इनकी ऑपरेशन साइकिल है, जिसको आप 70-80 साल तक ऑपरेट कर सकते हो। तो वो एक ऐसा टाइम था कि वो ऑपरेशन उनका पूरा हो ही गया है, पब्लिक में ऑलरेडी गुस्सा है, तो फिर ठीक है, अब उनका यूज़ तो आपने पूरा कर ही लिया, तो फिर बंद ही कर दो, ये शट डाउन कर दो, अब जो होगा देखा जाएगा, वापस से कोल पे आ जाओ, ये हो जाओ, दिस एंड दैट। सो दिस इज व्हाई दिस वाज अ डिक्लाइन। ओके, टाइमलाइन देखोगे तो 2011 से लेट से 2015 तक इट वाज डाउन। ठीक है, 15 में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ विच वाज COP21, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, पेरिस एग्रीमेंट केम इनटू पिक्चर, जिसमें सबको पता चला कि भाई अगर सरवाइव करना है तो यू नीड टू रेस्ट्रिक्ट द 1.5 डिग्री राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी डेवास्टेटिंग। बाय द वे वो हमने क्रॉस कर लिया है, एंड अभी का सिनेरियो वी ऑल नो कि क्या है। सो दिस वाज अ टाइम एवरी गवर्नमेंट डिसीजन मेकर, एजेंसीज, एवरीवन वाज इंट्रोस्पेक्टिंग कि भाई सोल्यूशन क्या है, व्हाट टू डू नाउ। देन दे फाउंड आउट कि सी, अगर आपको जो आपका बेस लोड एनर्जी सोर्स है, जो एक लाइक 24/7 आपको जो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ही होती है,
लाइक वो ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री का एक 70% का उसके ऊपर साइकिल्स होते हैं बट 70 इज द स्टेबल दैट यू नीड इररिस्पेक्टिव घर में कमर्शियल हो इंडस्ट्री हो कुछ भी हो कंबाइंड उतना चाहिए ही चाहिए उसके ऊपर का लोड फॉलिंग है कि दिन में बढ़ेगा, सर्दियों में बढ़ेगा, गर्मियों में बढ़ेगा, कम होगा, दिस एंड दैट. तो पीपल रियलाइज कि वो जो बेस लोड है वो आपको डिकार्बोनाइज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एंड उसके लिए आपके पास दो ही सोर्स हैं. एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक, क्योंकि वो सबसे कम कार्बन एमिट करता है पर यूनिट मेगावाट यूनिट, या फिर न्यूक्लियर है जो सबसे कम कार्बन एमिट करता है. सो नाउ यू हैव टू डिसाइड क्या करोगे. उसके बाद आपके आते हैं चलो सोलर, विंड, वो सब. पीपल थॉट अगेन सोलर का तो आई मीन न्यूक्लियर का तो बैकलॉग है, लेट्स गिव इट अ ट्राई. सोलर पे पुश करते हैं, विंड पे पुश करते हैं. आई थिंक हाँ 15 के आसपास ही एकदम से टेक ऑफ होता है आई वाज लुकिंग एट इंडियाज कैपेसिटी एकदम ही बूम है एंड इंडिया के कंटेक्स्ट में तो ये भी है क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट चेंज हुई, तो 2014 में नए डिसीजंस आने हैं. रिन्यूएबल एनर्जी हमने अभी कमिट किया ही है पेरिस एग्रीमेंट में, तो लाइक लेट्स पुश. सो नॉट ओनली इंडियन कंटेक्स्ट बट ग्लोबली दिस वाज द सिनेरियो कि भाई पहले अपने गोल्स जितनी जल्दी अचीव कर पाए वो, ताकि कार्बन टैक्सेस कम हो, आप जल्दी से उसमें जाओ. बट दैट वाज आल्सो द टाइम फॉर न्यूक्लियर टू सी कि जब हम वी आर द ओनली पार्ट ऑफ सोल्यूशन, then what we should do to remain the part of the system. तो उस टाइम पे ही वी स्टार्टेड दिस न्यूक्लियर फॉर क्लाइमेट कैंपेन. हमने यूएनएफसीसी में भेजा कि न्यूक्लियर शुड बी इंक्लूडेड इन एज अ ग्रीन एनर्जी सोर्स इन क्लाइमेट एग्रीमेंट. एंड द ग्लोबल न्यूक्लियर इंडस्ट्री ऑल्सो स्टार्टेड टू टॉक कि भाई न्यूक्लियर को कैसे रीइंट्रोड्यूस किया जाए, लेट्स से. सो देयर वाज अ कंसेप्ट इन द यूएस कॉल्ड न्यू स्केल, जो एक छोटा 80 मेगावाट का रिएक्टर डिजाइन कर रहा है. सो पीपल थॉट इट्स अ गुड अप्रोच. आप छोटा रिएक्टर बनाओ और सब कुछ से सारे सेफ्टी सिस्टम सब उसमें ही डाल दो, एक बॉक्स में, एक वेसल में, एंड वो यूनिट की तरह आप उसको कहीं पे भी लगाओ. एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन जो हमारा नॉर्मल साइज था ग्लोबली वो अभी की रेंज में 600 700 800 के आसपास चल रहा है तो वी आर गोइंग 1/10 दी साइज ऑफ अ टिपिकल रिएक्टर राइट. So that's where the concept of small modular reactor came. उसमें क्या दो फायदे हो रहे हैं आपको. आप एक तो सेफ्टी आपने सुपर इम्प्रूव कर दी. जो ये सिवियर एक्सीडेंट सिनेरियो था वो आपने रिमूव बाय डिजाइन कर दिया. फॉरगेट इट, डिजाइन से ही खत्म ही कर दिया कि वो पॉसिबिलिटी नहीं कर छोड़ी टाइप्स. सो यू आर पुशिंग दैट. दूसरा कॉस्ट आपने इतनी छोटी कर दी. अगर उससे फायदा ये है कि स्मॉल इकोनॉमीज कैन टेक इट, जिनको नहीं चाहिए छोटा पैसा लगा के, छोटा न्यूक्लियर लगा के, यू कैन डिकार्बोनाइज योर बेस लोड. विच इज़ इन अ वे लेट्स से टॉप 5-10 कंट्रीज हटा दी तो हर कंट्री के स्कोप के अंदर आ जाती है एग्जैक्टली. एंड फिर उसमें क्या है कि मॉड्यूलैरिटी होने के हिसाब से न्यू स्केल वाज सेइंग कि आप को 10 यूनिट एक साथ तक लगा सकते हो. लाइक आपको एक चाहिए एक लगाओ, दो चाहिए दो लगाओ, सेम कंट्रोल रूम से आप उसको कंट्रोल कर पाओगे. दिस इज अ नाइस कॉन्सेप्ट. एंड एवरीवन थॉट ऑफ गोइंग इन दिस डायरेक्शन. एंड फिर सबने SMRs डेवलप करना शुरू कर दिया. एंड दे वांटेड टू कैप्चर दिस अप्रोच. तो उससे दो फैक्टर हो गए. जो लोगों में सेफ्टी का कंसर्न था वो रिड्यूस हो गया, और जो कॉस्ट का कंसर्न था वो भी रिड्यूस हो गया कि अब छोटे कॉस्ट में यू कैन स्टिल डिकार्बोनाइज योर बेस लोड, यू कैन गो फॉर न्यूक्लियर. एंड देन जो न्यूक्लियर फॉर क्लाइमेट वाला था वो भी सक्सेसफुल हुआ. 23 दिसंबर 23 में जब COP28 में दुबई में न्यूक्लियर वाज इंक्लूडेड इन द क्लाइमेट एग्रीमेंट एज अ ग्रीन एनर्जी सोर्स. तो लेट्स से 2015 टू 23 में जो ये 8 साल का इन अ वे वी कैन से कि टाइम पीरियड था जहाँ पे स्टार्ट होके कैंपेन्स हो रहे हैं एंड 23 में फाइनली इंक्लूड किया जाता है कॉप में. वाज दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि SMR एज अ टेक्नोलॉजी मैच्योर हो गया डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, वाज दैट द मेन रीज़न कि हाँ चलो अब वी नो, और व्हाट वाज दैट ट्रिगर पॉइंट कि चलो 23 में व्हाट कुड हैव बीन कि 25 या 26 में नहीं हुआ, वो 23 में ही क्यों हुआ इज मे बी. देयर आर मल्टीपल रीजंस आई वुड से. SMR1 की उनका डिज़ाइन में काफ़ी मैच्योरिटी आ रही थी. इट इज़ कहीं पे भी अभी पूरा डेवलप होके या सारे ऑपरेशनल फील्ड में नहीं गया,
but it was mature enough that people were making deals कि हम यहाँ पे लगाएंगे, locations were identified, there were clients, there were designers who were ready to, supply chain was developing. Along with that, जो 2015 के claims थे उनके रियलिटी भी सामने आ रही थी, कि टू 1.5 डिग्री राइज को रोकने के लिए जो रिक्वायरमेंट है डिकार्बनाइजेशन रेट, उसके अकॉर्डिंग रियलिटी में हम कहाँ पे हैं. ऑल ऑफ दिस वाज कमिंग. और भी एक सिनेरियो था, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से ये भी रियलिटी आ रही थी कि रिसोर्सेज का लिमिटेशन और उनकी कॉस्टिंग इज अब्रप्टली चेंजिंग. इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनपुट ऑफ कॉस्ट इज ऑयल. आपका 22 में वॉर होता है, सो दैट There are many factors which were adding. So everyone wanted to go for energy security. So this was one of the big push that we should now consider this. और एक फैक्टर था जो लाइक पहले लोग नहीं सोच रहे थे, जो ग्लोबल साउथ जो हम बोलते हैं, दे वर नॉट इनटू न्यूक्लियर, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं था, और आई वुड से नॉलेज से बेटर कि अवेयरनेस नहीं था, या उतने ऑप्शंस नहीं थे. उन्हें हमेशा वही बड़े रिएक्टर दिखते थे और वो आउट ऑफ कैपेबिलिटी जा रहे हैं, तो फिर it was not pushed. But when this came, so they were all interested. Exactly. So they were able to think about it. Now they wanted to be the part of it कि भाई हमें भी चाहिए फिर, जब ये इतना सही है तो. So this was a big push. All of this led to inclusion कि भी हाँ, nuclear should be the part of climate agreement. एंड उससे मेजर चेंज जो हुआ ग्लोबली कि सारे गवर्नमेंट्स नाउ वांटेड टू पुश फॉर इट, क्योंकि अगर वो ग्रीन का पार्ट है तो फिर आपके कार्बन क्रेडिट्स में रिबेट एंड ऑल वो सब मिलेगा, आपका डीकार्बनाइजेशन रेट विल बी फास्टर. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को समझ में आया दैट दिस विल ग्रू द मार्केट, तो ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो बैंकिंग सेक्टर है, वर्ल्ड बैंक है, they all aligned themselves towards the nuclear deployment at a faster rate. Main objective to achieve the climate goals. So this is what was happening there. And तब तक और एक चीज हो गई, this was the time, तब तक fusion was also out of the books now. People were able to see fusion machine in assembly in France. Many different new concepts upcoming in the private fusion market. People are racing towards commercialization of fusion, which was also part of the discussion in the climate agreement कि इस type का भी एक futuristic source है. तो like why only fossils and why we are not getting away from fossils, which led to this factor. इंटरेस्टिंग. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि 2015 में जो डिक्लाइन होता है उसके बाद SMR टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं 22 में विच लेड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शंस. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लाइमेट गोल्स अलाइन होते हैं वो किसी को उस पर मटीरियल प्रोग्रेस होते हुए नहीं दिखता, या जो ऑल्टरनेट सोर्सेज थे सोलर विंड, उनकी नेगेटिव फैक्टर्स भी थोड़ा बहुत सामने निकल के आते हैं. एंड वो सब चीज़ें, एंड आपने आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट टच किया ग्लोबल साउथ वाला, वॉज द G20 summit that happened in India. I think that happened in 23 itself. So was that again a small, Might have added a small contribution. right? जो global south एक as a term ही तभी coin हो. टर्म तो तभी कॉइन हुआ, frankly. And in fact, India ने भी, there was a G20 task force on nuclear, जिसमें SMR was one of the prime product discussion. This was very important from Indian point of view, जो G20 में task force बना. Super nice, great. So ये सारे factors combine होते हैं and 23 में COP में आता है, and that again hopefully it's been only what 12-13 months since that. So we can say कि this is a new trajectory for the nuclear fission fusion as a technology जो एक appreciable mix बन सकता है globally in energy, not just in big economies, small countries also, right? So it's a again we can say this can be a huge, क्या कहते हैं उसको, एक catalytic moment हो सकता है. In a way, yes. In a way, this was one of the catalytic factor, क्योंकि जब क्लाइमेट एग्रीमेंट में आ गया तो उसके बाद लेट्स से यूरोपियन यूनियन ने उसको नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट बनाया, उसमें दोनों टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड किया. इन द US there was a dedicated fusion policy came up.
UK में there was a change in UK fusion and nuclear policy accordingly. बाकी there were I think 22 countries who decided to triple their nuclear. वो एक consortium बना, sort of agreement बना कि we will triple. India already path पे था to make it to 32 gigawatt. अभी recent announcement में they are going for 100 gigawatt. So all of this was part of the same flow in a way. And again, carbon credits were one of the biggest push क्योंकि अब उनके prices भी बढ़ रहे हैं because achieving goals are getting tougher and tougher. And उसके implications भी ज़्यादा हैं. You have seen the wildfires in LA or all of this. All of this is like now the reality we are facing of all the actions. Let's say पिछले 10 साल के भी देख लो जहाँ पे हमें proactive होना चाहिए था and हम proactive नहीं थे. So all of this. इंटरेस्टिंग, सुपर इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक अब यहाँ से एक बार विच यू से राइट कि कॉस्ट हैज़ बीन हिस्टोरिकली नॉट अंटिल द SMR वाला थिंग विच अगेन हैज़ बीन अडॉप्टेड एज ऑफ नाउ, बट कॉस्ट हैज़ बीन अ मेजर डिटरेंट राइट फॉर nuclear adoption all in all. So what is a typical cost, let's say in Indian rupees, just for our audience point of view, per megawatt कितना costing जाता है install करने? Roughly 17 to 20 crore per megawatt जाता है Okay. न्यूक्लियर का. Right. एंड आई थिंक सोलर का सिग्निफिकेंटली कम है. Okay. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट यू कैन चेक. आई थिंक 4 या 5 करोड़ पर मेगावाट है और समथिंग लाइक दिस यू कैन चेक. दिस लाइक इंटरनेट फिगर. बट न्यूक्लियर का सिग्निफिकेंटली हाई है. उसके 2-3 फैक्टर्स हैं. एक कि न्यूक्लियर प्लांट्स नॉर्मल डायरेक्ट मटेरियल से नहीं बनाते. देयर आर स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स सेफ्टी पर्सपेक्टिव. सो उनका कैपिटल कॉस्ट इटसेल्फ हाई होता है. कंक्रीट का भी जो हम नॉर्मल कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बनता है और जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनता है इट्स डिफरेंट कंक्रीट, स्पेशलाइज्ड कंक्रीट, अगेन शील्डिंग एस्पेक्ट एंड ऑल ऑफ दिस. सो इन अ वे कैपिटल कॉस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है इट इज हाई. Because quality material, type of material. यस, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दैट. सो ये सब वहाँ पे रहता है. दूसरी चीज़ जो फ्यूल का कॉस्ट भी है Right. इट इज़ हायर. यूरेनियम महंगा है Right. कंपेयर टू कोल और एनीथिंग यू टेक. ऑल्दो चाहिए भी तो कम ही होता है फिर. लेकिन आप क्या करते हो कि आप ऐसा नहीं करोगे. once you start your nuclear power plant you continue to operate it. You can't stop it. या फिर आप उसको बंद ही करोगे. तो वो ऐसा नहीं कि आज कोयला है तो डाल लिया, नहीं है तो कोई बात नहीं बंद कर देते हैं, कल जब आएगा फिर से वी कैन स्टार्ट. इट डजंट वर्क दैट वे. तो यू सिक्योर द फ्यूल फॉर लेट्स से जो भी आपका 40 ईयर 60 ईयर जो भी प्लांट लाइफ है उसके लिए. तो जब बनता है तभी फ्यूल सिक्योर लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सारी चीज़ें सेटअप हो जाती है. तो उसकी भी एक एडेड कॉस्ट है. तो वो ऐसा नहीं है कि ठीक है यार अभी 10 साल का ले लो, बाद में जब सस्ता हो जाएगा तब ले लेंगे. यू सी वी डू इट लाइक सब सिक्योरिटी. उसके बाद हम उसको वेस्ट को रीप्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, वो जो सारी कॉस्टिंग है यू ऑल्सो अकाउंट फॉर दैट. क्योंकि उस टाइम पे जब आप डीकमीशन करोगे या प्लांट ख़त्म हो गया 60 साल बाद, तो भी वो ऐसा नहीं है ना कि वो रेडियो एक्टिव तो है वो. तो इट टेक्स लाइक अनदर 10-20 years टू डीकमीशन इट, टू टेक केयर ऑफ दैट वेस्ट एंड ऑल ऑफ दिस. और उस टाइम पे प्लांट क्योंकि बिजली तो पैदा कर नहीं रहा तो वो कॉस्ट तो उस टाइम तो आएगी नहीं. सो ऑल दैट कॉस्ट अगेन यू अकाउंट इन द बिगिनिंग कि भाई वो ये सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी आपका है. सो ऑल ऑफ दिस लीड टू हैव अ लिटिल बिट हायर कैपिटल कॉस्ट. ठीक है. ऑपरेशन कॉस्ट आपकी पता है, आपका सिर्फ मेंटेनेंस होना है और जो बीच में फ्यूल आना है वो है. दिस इज द ओनली टू सिनेरियो. सो अगर हम वैसे कंपेयर करें तो इनिशियल कॉस्ट न्यूक्लियर में हायर रहती है कंपेयर टू एनी अदर रिन्यूएबल प्लांट. सो वी कैन से कि कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है. दिस इज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन अगर आप ओवरऑल प्लांट साइकिल कॉस्ट देखोगे स्टार्टिंग से यहाँ तक एंड देन यू डिवाइड इट पर मेगावाट, लेट्स से इट इज चीपर. इंटरेस्टिंग. सो अगर कोई भी कॉस्टिंग को सिर्फ पहले 1-2 या सेटअप कॉस्ट के हिसाब से देखेगा, इट अपीयर्स टू बी एक्सपेंसिव, सुपर एक्सपेंसिव, मैसिव आउटले इन वन गो, राइट.
बट उसका जो बेनिफिट है वो टुवर्ड्स द एंड अक्रू होता जा रहा है, एंड जैसे आप पूरा उस प्लांट का लाइफ साइकिल पे देखते हैं तो इकोनॉमिकली ओवर 60 70 80 years whatever the life दिस इज प्रिसाइजली द थिंग, क्योंकि आप जो ये लगा रहे हो, लेट्स से अगर हम आज की बात करें तो आप 60 ईयर्स के लिए लगा रहे हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट 60 ईयर्स के लिए नहीं है, उसकी साइकिल अगर मैं मैक्सिमम भी लूँ तो 20 ईयर्स है मैक्सिमम, वो भी अभी पता नहीं वो भी पता नहीं है, बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 20 ईयर्स मैक्सिमम। और तो तब तक एक रिएक्टर की प्लांट में आप 3 बार वो प्लांट लगाओगे, सो दिस इज ऑल्सो द कॉस्ट। लेट्स से सोलर भी है, अगर लेट्स से आज इंस्टॉल हुआ, अगर लेट्स से 2020 में हुआ तो 2035 लेट्स से 40 व्हाटएवर द डिज़ाइन कैपेसिटी इज, उस टाइम पे फिर आप उसको और पुरानों को हटाओगे और नए और लगाओगे। और मेरे को तो आई थिंक वन ऑफ द कंसर्न्स जो अगेन बहुत ही अंडर डिस्कस्ड है, वो एक फिजिकल मटेरियल है। जैसे कोल और गैस तो चलो उड़ के हवा में गंदगी कर दी, राइट, आपका एयर पोल्यूशन हो गया। सोलर और विंड के केस में तो आपका सॉलिड मटेरियल है जो रिसाइकिल भी आई डोंट थिंक इतना इजीली हो सकता। अभी तक तो नहीं होता है, ओनली एक ही कंपनी आई थिंक वो चाइना में जिसने ये शुरू किया है, बट वो सुपर एक्सपेंसिव है, और उसमें भी रिट्रीवल जो है आई डोंट थिंक मोर देन 25% है, ऐसा कुछ है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो, आप उसमें से सेम मटेरियल वापस निकाल नहीं सकते हैं, कितने केमिकल प्रोसेस होने के बाद बन रहा है, कहाँ से आप नहीं raw निकल रहा, material- एग्जैक्टली। और ये एक एस्पेक्ट है, स्टोरेज वाला एस्पेक्ट एडेड है, Interesting. The intermittency case. exactly. And when I say this, when I make a comparison of let's say nuclear and solar, people directly come after me कि अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं, things like, but understand I am not against solar. What I am trying to say is I am against the solar as a base load or any renewable as a base load. मतलब आप 70% अगर आप रिन्यूएबल लगा रहे हो अपनी कंट्री में, स्पेशली अपनी कंट्री में, तो आई विल से आई एम अगेंस्ट इट। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट देखो आप, 140 करोड़ पीपल हैं, हमारी रिक्वायरमेंट इज मैसिव। उसमें आप रिन्यूएबल्स लगाते हो, आपके पास लैंड एरिया उतना है, हम ऑलरेडी कंजेस्टेड हैं। ये दिस इज अगेन वेरी वेरी अंडर डिस्कस्ड की, और इन अ वे अगर आप देखें लैंड प्राइसेस अप्रिशिएट हो रहे हैं, सो जी अंडरलाइंग लैंड आप यूज़ कर रहे हो टू इंस्टॉल, चाहे आप डेजर्ट में कर रहे हो फॉर दैट मैटर, नॉर्मल एरियाज में तो कर ही नहीं सकते एट स्केल। तो उस फिर एंड वन मोर थिंग, ट्रांसमिशन, कि वो बिजली लेके वापस लेके आना टू अ व्हाटएवर हाउसिंग एरिया, कमर्शियल इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो, देन स्टोरेज जो आपने कहा। एंड इसमें और एक फैक्ट मैं बताता हूँ, और इसमें अगेन मेरी मेरी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, यू योर सेल्फ कैन सी। 10 साल पहले 35 डिग्री वॉज द हाइएस्ट टेम्परेचर गर्मियों में, आज की डेट में 48 डिग्री इज द नॉर्मल टेम्परेचर गर्मियों में। इसका क्रॉप्स पे क्या असर पड़ रहा है? तो जो लैंड आपको पहले जितना फूड दे रही थी 30 डिग्री पे, 35 डिग्री पे, क्या वो आज 48 डिग्री पे दे रही है? और क्या वो 20 साल बाद जो भी आपका टेम्परेचर होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, कम तो नहीं होने का, तो क्या वो देगी? तो उस कंपैरिजन में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको लैंड एरिया बढ़ाना ही पड़ेगा ना एग्रीकल्चर के लिए। तो मतलब इवन टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ फूड, आपको जो क्रॉप एरिया है, लैंड है ऑन विच कल्टिवेशन इज हैपनिंग, वो और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब आप उस पर सोलर लगाओगे या नहीं लगाओगे? अच्छा, और एक कंसेप्ट आया है कि आप सोलर लगाओ, उससे यील्ड बढ़ रही है क्योंकि वो हार्शनेस कम करती है। दिस इज अनदर कंसेप्ट के क्रॉप के ऊपर नहीं, क्रॉप के ऊपर। अच्छा क्रॉप के ऊपर ही कुछ अलग ही, ओके। तो लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑन गोइंग, बट मेरा फैक्टर ये है कि कीप सोलर और एनी रिन्यूएबल इन दिस जोन ना, जो 30% वाला है ऊपर, वहां पे आप जितना मर्जी प्ले करो। जो ये बेस लोड है जो कोल से आ रहा है, आप उसको रिप्लेस करो विद न्यूक्लियर। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी डेंसिटी हाई है, 24/7 आपको एनर्जी मिल रही है, और लैंड एरिया एंड ऑल दिस रिसोर्सेज मिनिमम है। आई थिंक दिस इज अंडर अप्रिशिएटेड कि जितना जैसे कोल माइनिंग है या जो उसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, जो हवा गंदी हो रही है, दैट्स जस्ट वन पार्ट। वो जितना एरिया में माइन होके आता है, जितना क्या कहेंगे उसको, ग्रीन एरिया उससे अफेक्ट होता है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट किया जाता है उन माइंस को डेवलप करने के लिए। जैसे अभी भी जिन एरियाज़ में झारखंड या जो भी मिनरल बेल्ट है, वहाँ पे कितना आपको मैसिव स्केल पे डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है जस्ट टू गेट टू द माइंस, राइट? दैट्स नंबर वन। एंड सेकेंडली जो आप ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि
एक डेंसिटी वाली चीज़ कोई इतना अच्छे से समझ नहीं रहा है कि आपके इतने से लैंड पार्सल से कितना मैसिव स्केल पे एनर्जी बिल्ड। उसके बाद ये तो सिर्फ अभी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर में और एक चीज़ है कि जब आपने इलेक्ट्रिसिटी बना ली उसके बाद भी एक रिमेनिंग हीट होती है। यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर डिसैलिनेशन। आप सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस रेजिडुअल हीट। तो आपके पास बेसिकली हीट सोर्स है। एक हीट सोर्स ऑलरेडी बना हुआ है, आप जो मर्जी करो। तो आप उस हीट को कैसे भी यूज, थर्मल एक चीज बनी हुई है। एग्जैक्टली उससे आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। वी कॉल इट पिंक हाइड्रोजन। The pink hydrogen is the term. We don't call nuclear hydrogen को green. It's a pink hydrogen, dedicated term. वो भी आपके पास added है. You can use it wherever you want. तो like एक complex hybrid source मिल रहा है आपको. Energy तो आप ले ही रहे हो. और साथ में जब आप रीप्रोसेसिंग कर रहे हो तो आपको जो रेडियो आइसोटोप्स, मेडिकल, एग्रीकल्चर, वो तो और ही एक्स्ट्रा है. वो तो बिल्कुल ये से बाय प्रोडक्ट्स है जो कोई काउंट ही नहीं कर रहा है। सो लाइक मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं कि व्हाई यू आर नॉट कंसिडरिंग इट. And I think government now understand, so that's why they are pushing. It's people who need to understand the basics now. और वो responsibility भी है हमारी कि हम समझें and उसको support भी करें. क्योंकि अगर पब्लिक्स के साइड से अगर लेट्स से नॉट इवन सिंग पॉजिटिव, अगर नेगेटिव सेंटिमेंट भी धीरे धीरे ड्रॉप होता है अराउंड न्यूक्लियर, दैट इज ऑल्सो बिकम्स ईजियर फॉर द गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट, राइट, एट दैट टाइम कि एटलीस्ट बैकलैश नहीं आ रहा है, मोर पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोज। प्रोज तो एक चीज़ है कि जो लोग समझ नहीं रहे वो अलग है, एक नेगेटिव वाला एलिमेंट और फीलिंग भी अगर ट्रिम डाउन होता है तो Yes, and in a detailed survey, we know India is one of the most nuclear positive country, which we should appreciate. लेकिन जितना ज़्यादा हम समझेंगे उतना ज़्यादा हम अप्रिशिएट भी कर पाएंगे एंड उतना ज़्यादा फिर हम डिमांड भी कर पाएंगे. वी अंडरस्टैंड, राइट, कि अपफ्रंट ज़्यादा लगेगा बट ओवर लाइफ टाइम इट्स मच चीपर, एंड उसके जो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस है वो तो कोई काउंट भी नहीं कर रहा है कि जितना डीकार्बनाइजेशन होके फ़ायदा होगा वो तो कैलकुलेशंस में है ही नहीं, किसी फाइनेंशियल कैलकुलेशन में है नहीं वो चीज़ इस टाइम पे, राइट. बट लेट्स ऑल्सो क्विकली टच कि पिछले 2 या 3 सालों में, एंड मे बी आई थिंक दैट जो हमने डिस्कशन किया उसी का एक नेचुरल आउटकम है वो, जो यूरेनियम विच इज़ इनपुट टू द रिएक्टर्स, उसका कॉस्ट $28 पर पाउंड से आई थिंक ऊपर 100 के आसपास जाके अभी 70 के आसपास स्टेबलाइज हुए. सो व्हाट वाज द रीज़न? Was it this only? The 23 में मल्टीपल फैक्टर्स हैं. एक तो अगेन एनर्जी सेक्टर में जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज का बहुत बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. दिस वी शुड अंडरस्टैंड. दूसरा, स्पेशली यूरेनियम का केस का या लेट्स से फ्यूल का बात करें तो देयर आर ओनली कपल ऑफ लेट्स से सप्लायर्स. ऑस्ट्रेलिया है, कजाकिस्तान है, यूएस का खुद का सोर्स है, फिर रशिया है. तो लाइक दे आर द मेजर सप्लायर. कनाडा है, दे आर द मेजर सप्लायर्स. ओके, उसके बाद आता है कि कॉस्ट किसका है कम. तो लाइक सप्लाई में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, एंड दैट्स वेयर आई थिंक रशिया इज़ वन ऑफ द सोर्सेज जो सबसे सस्ता मार्केट करता है. तो इफ़ समवन इज गेट into geopolitical scenario with one specific country, then the prices become tricky. This is the same case with oil. Oil के case में ये होता है कि main suppliers are in Middle East. If there are some scenarios, things get dirty. Same is the case with gas. So this is one of the major thing which disrupt the fuel market, whether it's oil and gas, whether it's uranium. सो मेनली जो प्राइसेस हैं वो उसका इफेक्ट है बेसिक यहाँ पे आपकी एक. और ये तो आई थिंक कंपेयर टू ऑयल एंड गैस में भी थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि 3 से 4 कंट्रीज ही हैं. तो वहाँ पे जैसी कुछ जियोपॉलिटिकल एंगल आएगा आपके प्राइसेस अफेक्ट होने स्टार्ट होंगे. दूसरा एक और भी है कि सप्लाई डिमांड जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वो सप्लाई के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी. नाउ क्वेश्चन ये आता है, एंड आई एम श्योर लोग वो पूछेंगे जब ये भी महंगा ही मिल रहा है तो फिर हम और ही कुछ क्यों ना लें. वो पॉइंट इज़ कि महंगा मिल रहा है दैट इज़ स्टिल ओके, बट जो पूरी कॉस्टिंग के हिसाब से भी देखो तो आपके लिए तो कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है कि पर यूनिट बिजली आपको कितने में मिल रही है. ठीक है, अगर हम सब्सिडीज हटा दें, ट्रांसमिशन सब्सिडी,
इंस्टॉलेशन सब्सिडीज जो गवर्नमेंट रिन्यूएबल्स को दे रही है, बाकी सोर्सेज को दे रही है, वो सब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. न्यूक्लियर महंगा होगा, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो अगर सब्सिडीज देनी है तो लाइक उस जगह दो जहाँ पे और भी स्पिन ऑफ फैक्टर्स हैं. दिस इज लाइक फॉर मी इट्स अ वाइज थिंग टू डू. जैसे एक एग्जाम्पल कुड बी कि आइस व्हीकल्स पे आपने टैक्स लगाया 1 लाख रुपए का, और उससे आप एग्जैक्टली ईवी में डाल के सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, ताकि आपने जो इनिशियल मे बी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, जो प्राइस डिस्पैरिटी है, उसको आप बराबर लेके आ गए. अभी आपके हिसाब से यू सेइंग कि जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, चाहे ऑयल एंड गैस हो, चाहे रिन्यूएबल्स के लिए ट्रांसमिशन हो, मल्टीपल फैक्टर्स, उनको इतना सब्सिडी मिला हुआ है कि उनका नेट कॉस्ट अभी कम दिख रहा है. बट अगर वो सब्सिडीज आप हटाएंगे तो कम्स एट पार, राइट? सेम चीज़ अपने ईवी को देखो. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपने लेट से सब्सिडाइज कर दे, यू आर पुशिंग मोर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन वो चार्ज करने के लिए तो आप कोयला ही जला रहे हो ना. कि किसी थर्मल प्लांट में ही बन रहा होगा, मे बी उस शहर में नहीं जल रहा वो कोयला, बट जल रहा है कहीं पे. डिफरेंस इतना आ रहा है कि वो शहर में हर जगह सोर्स नहीं है, लेकिन एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स तो है. एंड अगर यही सिनेरियो को हम ग्लोबल स्केल पे देखें तो अर्थ जो है वो एक क्लोज्ड स्फीयर है, ऊपर एटमॉस्फेयर है. तो चाहे कार्बन यूएस में जनरेट हो, चाहे इंडिया में, चाहे चाइना में, चाहे नीचे अफ्रीका में, कहीं कहीं पे भी हो, इट्स ऑल ट्रैप्ड इन हियर. इफेक्ट सबको आएगा. वो जो जो एक आई थिंक ऑब्जर्वेटरी है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जहाँ पे वो पीपीएम एग्जैक्टली. वो बढ़ तो ग्लोबल लेवल पे ही रहा है, वो Yes. 420-30 जितने भी पहुंच चुका है. आई थिंक इट्स 420-25 पीपीएम. तो लाइक वो इफेक्ट, कार्बन हवा में घूम फिर के पहुंच ही जाए, इट्स कंसंट्रेशन अ हर क्लोज, जगह एग्जैक्टली वो क्लोज सरफेस है. वो एलए में फायर हुआ, उससे जितना कार्बन एमिशन हुआ उसका इफेक्ट सब जगह है. वो ऐसा नहीं है कि वो तो यूएस में अपना क्या है, नो, इट्स एवरीवेयर. जो पोल्स पे आइस पिघल रही है, एवरीवन इज गेटिंग इफेक्टेड. So just before this, we had guest, Mr. Rajan Mehta, who wrote this book, Backstage Climate, and we had this discussion only. So again, उन्होंने भी फ्लैश पॉइंट्स के बारे में बात की कि आपके एंटार्क्टिक आइस शेल्स हैं वो पिघल रहे हैं, और आर्कटिक में पर्माफ्रॉस्ट है. वो अगर धीरे धीरे उसने गीगाटन्स अपने रिलीज 1500 गीगाटन्स ट्रैप्ड हैं. वंस दैट्स थॉइंग स्टार्ट हो गई है, वो निकलना स्टार्ट होगा, तो यू डोंट नो. प्रॉब्लम इज लोग, बहुत ही कम लोग हैं जो इतने सारे मल्टी वो जो मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट्स से nth ऑर्डर थिंकिंग कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम में, कि आपका सिर्फ कार्बन नहीं है, वो एग्रीकल्चरल यील्ड इज़ वन थिंग, जो टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं इज़ अनदर थिंग. जब वो आइस पिघल जाएगी तो क्या, नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ दिस सिस्टम विल. सो एक होलिस्टिक अप्रोच में देखोगे तो दे ऑल आर द फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग. आपकी जब 48 डिग्री पहुंच गया, एसीज आपकी रिक्वायरमेंट है. पहले कहाँ होता था? हाँ, लेकिन अब लेकिन एसीज में जो गैस यूज होती है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग. तो लाइक हाउ विल यू बैलेंस इट अप? समवेयर समवन नीड टू ब्रेक द चेन. दैट्स वेयर आप जहाँ पे स्मार्टली कुछ कर पाओगे, एंड वहाँ पे मेन कंसेप्ट आएगा द फैक्टर ऑफ डेंसिटी किसी भी चीज़ का. अगर कार्बन डेंस सोर्स है, आप उसको रोक पा रहे हो, तो आप सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो लोअरिंग डाउन में. एनर्जी डेंस सोर्स है तो आप लोअर कार्बन एमिशन से ज़्यादा चीज़ें कर पा रहे हो, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू लोअरिंग द इफेक्ट. सो लाइक दीज आर ऑल फैक्टर्स वी नीड टू फिगर आउट. और एक और बड़ा फैक्टर है, वो है नंबर. The number game is really nice. For example, India is 1.4 billion. अगर आप लेट से 1 ग्राम कार्बन कैसे भी बचा पाते हो पर कैपिटा, पर पर्सन, राइट? इमेजिन. सो यू सी इट्स ह्यूमंगस. नाउ पॉइंट इज कि वो आप कैसे बचाओगे, उसका बहुत सारे फैक्टर हैं. आप अगर सब्जी लेने गाड़ी के बजाय वॉक करके चले गए, सिंपल सिंपल, नथिंग लाइक सोसाइटी से सब्जी मंडी विच इज लाइक आधा किलोमीटर, just walk. But if you do it multiply by 1.4 billion, it's Yes. So again, मैं let's say early part of my career, I was in ExxonMobil, which is an oil and gas major, right? So one thing that I took away from that entire experience was कि how critical energy is to anything that we do.
कन्वीनियंस, अब ये लोगों को नहीं समझ आता कि every bit of convenience that you have, whether it's lights, whether it's computer, whether it's your phone, entertainment भी एनर्जी ले रहा है. आपको खाना खाना है, उसमें जो क्रॉप उग रहा है उसमें भी नाइट फर्टिलाइजर डल रहा है, वो भी एनर्जी से ही बन रहा है. एवरी सिंगल थिंग दैट्स हैपनिंग इज इनपुट, एनर्जी का इनपुट होता है तब वो चीज़ बन के निकलती है. एंड द प्रॉब्लम इज दैट जैसे इवन ब्लिंकिट 10 मिनट डिलीवरी वाली जो इवन दैट कन्वीनियंस, ऑल्दो आप प्राइसिंग दे रहे हैं उसकी, बट उस प्राइसिंग के अंदर ही एम्बेडेड है वो एमिशंस भी कहीं ना कहीं किसी शेप और फॉर्म में, राइट? एंड वो एमिशन का प्राइस अभी भी इट्स मिसप्राइज्ड. इट्स मिसप्राइज्ड. एग्जैक्टली. एंड ऑन पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आप प्राइस पे कर भी दो तो जो ये सिस्टम, नेचुरल सिस्टम है ना, इट डजंट डील विद मनी. आप टैक्स किसी को भी दे लो या उसको कॉम्पनसेट कर लो मनी से. नो, यू सी देयर आर फ्यूल सरचार्जेस नाउ, ये दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, बट नेचर डजंट डील विद कि हाँ मैं पैसे ले लेती हूँ यहाँ पे आइस बढ़ा देती हूँ. जो हम टैक्सिंग कर रहे हैं या कार्बन टैक्सेस हैं, सेस जो भी है, इट्स अगेन ऑल गेम्स ऑफ इंसेंटिव्स डिसइंसेंटिव्स. वो बट हमारी दुनिया में नेचर हैज नथिंग टू डू विद दैट. नेचर विल रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे. उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर वो टैक्सेस बढ़ेंगे तो आप वो चीज़ ना करो. तो अगर आप ये चीज़ पहले ही समझ लो तो आपको टैक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है ना. आप इतना कार्बन टैक्स लगा रहे हो, इससे अच्छा वो करो ही मत. और एग्जैक्टली.